दसोहा के सिद्धांतों को। Implementing कायकेव कैलाश की कार्यान्वित करते हुए सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु लगभग 10 मिलियन युवाओं को सक्षम बनाती है। ये गति और अन्य स्तरों के साथ साथ बहुतायत और कौशलयुक्त जनशक्ति की सृजित करने में सहायक है। विश्वव्यापी जनसांख्यिकीय रुझान ये दर्शाते हैं कि मुख्य अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में श्रम की भारी कमी का सामना करेंगी। जैसे विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए हम भाषा प्रशिक्षण सहित विदेशों में जरूरी कौशलों पर ध्यान देने पर बल देंगे। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कंप्यूटर संबंधी उपकरण, बिना डाटा, 3D प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता और रोबोट विज्ञान जैसे नए युग के कौशलों पर ध्यान देंगे, जिससे देश और विदेश में काफी मांग है और ये ज्यादा परिश्रम प्रदान करते हैं। संत बसवेश्वरा का दोबारा उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इनका दसोहा का सिद्धांत जिन्हें ये सरकार करती है। Data, 3D printing, virtual reality and robotics, which are valued highly both within and outside the country and offer much higher remuneration. Drawing again on Lord Basveshwara, his principle of Dasoha underlines most things this government does. Give it up for giving up LPG subsidy or the various pension schemes, or on the principle of sharing through distribution for the wellness of society, which is what Lord Basveshwara did even earlier in a millennia ago. The government is proposing to streamline multiple labor laws into a set of 4 labor codes. So for the sake of labor welfare, I like to repeat this slide. The government is proposing to streamline multiple labor laws into a set of 4 labor codes. Codes. C-O-D-E-S. Codes. This will ensure that process of registration and filing of returns will get standardized and streamlined. With various labor-related definitions getting standardized, it is expected that there shall be less disputes. We propose, again sir, this is an interesting idea, I wish to draw your attention. We propose to start a television program within the DD bouquet of channels exclusively for startups. This shall serve as a platform for promoting startups, discussing issues affecting their growth, matchmaking with venture capitalists, and for funding and tax planning. This channel shall be designed and executed by startups themselves. Later, in the speech, I shall deal with taxation matters of the startups. So, Stand Up India scheme has delivered enormous benefits. The country is witnessing emergence of thousands of entrepreneurs, from women and also from scheduled caste and scheduled tribes. Most of them assisted to set up their own businesses and industry, with capital provided under the Stand Up India scheme. Considering the beneficial results of the scheme and strong demand for its continuance by the SC and ST communities themselves, the scheme would now be continued for the entire period coinciding with the 15th Finance Commission, that is 2020 to 2025. The banks will provide financial assistance for demand-based businesses, including, for example, for acquisition of scavenging machines and robots. Sir, Speaker,
The Stand Up India scheme has made human dignity and self-esteem to go up. Kayakeva Kailasa, I said earlier, and I repeat, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has enabled SC and ST entrepreneurs in providing bulk LPG transportation contracts to them. In a matter of 2 years, over 300 entrepreneurs have emerged as a result of the stand-up scheme. Machines and robots have been deployed to do scavenging, which also saved the manual scavengers their dignity. The synthesis between stand-up and start-up, with commercial banks playing the catalyst, has brought this transformational change. Sir, now I shall concentrate a few paragraphs on ease of living. After all, everything that this government does with the principle of minimum government, maximum governance is aimed at getting ordinary citizens' life a bit easier. So the ease of living is a very important principle. This government aims to bring greater ease of living in the lives of its citizens. Digital payments are gaining acceptance everywhere, including by the government. Use of technology is an effective way to ensure this. Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan was launched on 5th March 2019 by the Honorable Prime Minister in Ahmedabad. The scheme aims at providing 3,000 rupees per month as pension on attaining the age of 60 to crores of workers in unorganized and informal sectors. About 30 lakh workers have already joined the scheme. For good quality of life and ease of living, maintaining a cleaner environment and ensuring sustainable energy use is absolutely vital. A program of mass scaling up of LED bulbs for widespread distribution at household level was taken up, resulting into massive replacement of incandescent bulbs and CFLs in the country. Approximately 35 crore LED bulbs have been distributed under the Ujala Yojana, leading to a cost saving, and this is very impressive. I request through you, respected Speaker, that all members present here listen to what cost saving has emerged because of the LED bulbs. Approximately 35 crore LED bulbs have been distributed under the Ujala Yojana, leading to a cost saving of 18,341 crores. And this 18,341 crores annually, every year, because of LED, this is what the country is saving. It is going to be free of incandescent, India is going to be free of incandescent bulbs, and CFL use has already become minuscule. We will use the approach of mission LED bulb method to promote the use of solar stoves and battery chargers in the country. To make railway travel a pleasant and satisfying experience to the common citizen, again ease of living, we will launch a massive program of railway station modernization this year. Railway station modernizations will be launched this year. Honorable Speaker, sir, I draw the attention to the women of India. Nari to Narayani. We believe, obviously this country's tradition has been Nari to Narayani. Swami Vivekananda, in a letter to Swami Ramakrishnananda, had said, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. I repeat, there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible. It is not possible for a bird to fly on one wing.
Swami Vivekananda's words, this government believes that we can make progress with greater women's participation. In India's growth story, sir, I would like to draw your attention. इसका पैमाना बना रहा है। मैं आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन एवं कार्य योजना सुझाने के लिए सरकार और निजी स्टेक होल्डरों के साथ विस्तृत आधार पर बनने वाली इस समिति का प्रस्ताव करते हूँ। मानव जीवन का ऐसा कोई कालखंड नहीं है जिसमें नारी का योगदान महत्वपूर्ण नहीं हो। सरकार ये दृढ़ता के साथ मानती है कि सामाजिक आर्थिक रूपांतरण जो विशेष रूप से पिछले दशक से आकार ले रहा है में भारतीय नारी की भूमिका बहुत ही स्पष्ट है और हाल ही में जो चुनाव हुआ वो ये दर्शाता कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महिलाओं का मतदान में भाग लेना एक नया रिकॉर्ड है। इस समय लोकसभा में रिकॉर्ड 78 महिला सांसद हैं। ये महिला केंद्रित नीति से परे हमारे दृष्टिकोण को रेखांकित करती है कि हम महिला नीति संबंधी पहलों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। मैं फिर से कहती हूँ कि ये दृष्टिकोण इस बात को रेखांकित करता है कि हम महिला नीति संबंधी पहलों को कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने मुद्रा स्टैंड अप एवं सहायता समूह कार्यक्रम जैसी विभिन्न स्कीमों के जरिए महिला उद्यमता सहायता दी है और महिला उद्यमता को बढ़ावा दिया है। मैं ये चाहती हूँ कि सभी जिलों में इसे लागू किया जाए। SHG हितकारी कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव सभी जिलों में है। इसके अलावा जनधन बैंक खाताधारी प्रत्येक सत्यापित महिला SHG सदस्य को 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी। प्रत्येक एक SHG में एक महिला को मुद्रा स्कीम के अंतर्गत $1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत में आपको सॉफ्ट पावर के रूप में उल्लेख किया था। मेरा ये मानना है, मैं अगली बार भारत के सॉफ्ट पावर पर अपनी बात कहूंगी। भारत के सॉफ्ट पावर की विभिन्न तरीकों से सराहना की जाती है। कतिपय आसान उदाहरण द्रष्टव्य हैं। विगत 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस लगभग 192 देशों में बड़े पैमाने पर योग का अभ्यास किया गया। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए 40 देशों में उनके अग्रणी कलाकारों द्वारा गाया गया। इसके बाद भारत को जानो वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मात्र NRI ने ही नहीं बल्कि कई विदेशियों ने भी भाग लिया। मैं भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं 180 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारत में आने के बाद मैं ये कहती हूँ कि जो जितने भी NRI हैं जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, भारत में जब आ जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से 180 दिन रहने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। मैं एक मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ जो पारंपरिक कारीगरों और उनके रचनात्मक उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो हम उनके लिए पेटेंट और भौगोलिक सूचना प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से मैं हिंदी में कहूंगी। इस उद्देश्य से मैं इस गरिमामय प्रांगण से पहली बार यह घोषणा करती हूँ
कि हम भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर जहां आवश्यक तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे। To give further impetus to India. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उन देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है जहां अभी तक निवासी राजनयिक मिशन नहीं है। तदनुसार मार्च 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन खोलने का अनुमोदन दिया था। वर्ष 2018-19 में रवांडा, जिबूटी, भूमध्य गिनी, रिपब्लिक ऑफ गिनी और बुर्किना फासो में 5 दूतावास पहले ही खोले जा चुके हैं। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य 4 नए दूतावास खोलना चाहती है। इससे विदेशों में न केवल भारत की उपस्थिति बढ़ेगी बल्कि हम उन देशों में विशेषकर स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर तथा अधिक सुलभ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ होंगे। प्राचीन काल से हमारी ये परंपरा रही है कि भारत ने हमेशा से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समन्वय के जरिए देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया है। भारतीय विकास सहयोग स्कीम आइडियाज परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त पोषण उपलब्ध कराती है तथा प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में अवसंरचना विकास और क्षमता में योगदान देती है। छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते हम ऐसे वैकल्पिक विकास परक मॉडलों पर विचार करेंगे जिसमें निजी क्षेत्र इक्विटी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, कॉरपोरेट निवासियों से योगदान आदि शामिल होंगे। मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आईडीएस स्कीम का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के रूप में विकसित कर रही है। The iconic tourism sites would enhance visitor experience. ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण करने के उद्देश्य से इस एक डिजिटल संग्रह बनाया गया है जिसमें भारत में आदिवासियों के दस्तावेजों, लोकगीतों, उनके विकास क्रम के फोटो, चित्रों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवन शैली, वास्तुकला, शिक्षा स्थल, पारंपरिक कला, लोक नृत्य और अन्य मानव विकास का संग्रह किया जाएगा। इस संग्रह को और अधिक समृद्ध और सुदृढ़ बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आती हूँ बैंकिंग क्षेत्र के लिए हम क्या प्रस्ताव कर रहे हैं उन पर आती हूँ। Financial gains from cleaning of the banking system are now amply visible. NPA बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने से वित्तीय लाभ प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने लगे। पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक की गिरावट आई। पिछले 4 वर्षों में आईबीसी और अन्य उपायों के चलते 4 लाख करोड़ से अधिक की रिकॉर्ड वसूली हुई है। वर्तमान में प्रावधान कवरेज अनुपात 7 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है और घरेलू क्रेडिट वृद्धि बढ़कर 13.8% हो गई है। सरकार ने समेकन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चालू किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 8 रह गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक त्वरित सुधार कार्यवाही ढांचे से बाहर निकलने में सक्षम हो गए हैं। Many six public sector banks have been enabled to come out of prompt corrective action framework. They've enabled 6 public sector banks to come out of that situation. Having addressed the legacy issues, पैतृक संपत्ति के मामले से निपटने के लिए फिलहाल अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर पर
प्रोत्साहित करने और बैंकों के क्रेडिट को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ की और राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है। 70,000 crores of rupees will be provided in order that capital will be boosted so that credit can be improved. To further improve जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण और दहलीज पर बैंकिंग सुविधा का प्रस्ताव देंगे तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहकों को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाएं लेने में समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा सरकार ऐसी वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए खाताधारकों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाएगी जहां अन्य द्वारा उनके खातों में नकद राशि जमा किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन को सुदृढ़ कराने के लिए भी सुधार किए जाएंगे। हमने कदम उठाए हैं ताकि समस्या का निदान हो सके और सुधार भी किए जाएंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां छोटे और मध्यम औद्योगिक खंडों में खपत मांग के साथ साथ पूंजी सृजन को बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनबीएफसी जो मूल रूप से काफी सुदृढ़ है को अत्यधिक प्रतिकूल जोखिम के बिना बैंकों और म्यूचुअल फंड से वित्त पोषण प्राप्त करना जारी रखना चाहिए। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एनबीएफसी जिनकी चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार 10% तक की प्रथम हानि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए 6 माह की आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी। मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की राशि को उच्च दर वाली जुटाई गई अस्थियों की बिक्री करने के लिए सरकार एक बार 6 महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी मुहैया कराएगी और ये 10% तक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक एनबीएफसी का विनियामक है, तथापि आरबीआई का एनबीएफसी पर सीमित विनियामक प्राधिकार है। वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में वित्त विधेयक में एनबीएफसी की तुलना में आरबीआई के विनियामक प्राधिकार को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव किए जा रहे हैं। एनबीएफसी जो सार्वजनिक ऋण देता है वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाए रखना होता है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा अपेक्षित अनुसार एक विशेष रिजर्व भी बनाए रखना होता है। एनबीएफसी को पब्लिक इश्यू से धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के लिए डीआरआर का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। On the TREDS platform, amendment in the factoring regulation जो वर्तमान में केवल एक पब्लिक